We are doing each and every question. I just want to make your concept clear. That's why we are doing everything, and we are moving little above, little ahead only. Like so syllabus completion का कोई सवाल ही नहीं आ रहे, हम clearly cover कर सकते, कोई issue नहीं है. Now see question देखो 17th question. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13, etc. 23. So कैसे करेंगे? 20th term from the last term. सर पहले टोटल टर्म्स निकालेंगे तो सर. ए पकड़ने का पहले 253 निकालने. कॉमन डिफरेंस निकाल. दो प्रकार सर ये पे रिवर्स ऑर्डर में लिखना. हाँ, सो ऐसे कर सकते हैं. यही AP रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं. देन क्या करते हैं 20. सो हमें चाहिए था 20. सो 253. देन इधर कॉमन डिफरेंस कितना था? सो इधर ये वाज 3. कॉमन डिफरेंस कितना था? 5. 5. फाइव. हम अभी क्या करेंगे? हम इसका -5. सो 253 के बाद कितना आएगा? 248. 248. 243. एक्सेट्रा up to 3 एक्सेट्रा आके लास्ट टर्म 3 तक आएगा. सो दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड. सो इधर आपको मिलेगा 253 फर्स्ट टाइम, कॉमन डिफरेंस मिलेगा -5. अभी 20th टर्म मतलब फ्रॉम द लास्ट, मतलब यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. हमने सीक्वेंस बदल दिया, कर दिया. अंडरस्टूड? सो a plus 19d. so a is equal to 253 plus 19 into d is equal to minus. So 253 minus 95. 95. अभी वो कम कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना. Two 158. 95. 158. हो गया आंसर. ठीक है. सो 20th फ्रेम फ्रॉम द लास्ट इज 158. अंडरस्टूड? दूसरा मेथड, डायरेक्ट मेथड देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. जैसे ये 253 कौन सा टर्म है करके देख लेना. देन सपोज 253 20th टर्म है, तो देन पीछे से 20 टर्म, मतलब मान लीजिए ऐसे 253 सपोज मान लीजिए 40th टर्म. जस्ट चेक. हाँ, अस्यूम है. जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग अनदर मेथड. तो पीछे से 20th टर्म मतलब आगे से कौन सा टर्म हो जाएगा? पीछे से 20. पीछे से 21 मतलब आगे से कितना आएगा? 20th टर्म. टोटल 40 थे. Understood? Yes sir. Yeah. So, but it is better Yes, sir. to use the first method that I told. That will be easier. Okay. We'll take next question.
Can you see the screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. So fourth term plus eighth term Is equal to 24. is equal to 24. Fourth term plus eighth term is 24. Sum of the sixth term plus eighth term is 44. 10. 44. 44. So A6 plus A10 10. equal to 44. Find the first three terms. So we don't know what is the first term and common difference. So we'll take A and A is the first term. D is the common difference. Fourth term मतलब A plus 3D plus eighth term मतलब A plus 7 times 7D D. is equal to 7 24. times. So it is 2A plus 10D is equal to 24. 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं A plus 5D is equal to 12. Then A plus 5D, that is sixth term. Just 1 second, one sir is calling, just hold on. Okay, A plus 5D plus A plus 9D 9D. is equal to 44. This is 2A plus 14D is equal to 44. A plus 7D is equal to 22. Right? So अभी आपको 2 equation मिला. A plus 7D is equal to 22. A plus 5D is equal to 12. So subtract कर देना. 7D minus 5D. 2D is equal to 10. D is equal to 10 by 2, 5. A plus 7D is equal to 22. A plus 7 into 5 is equal to 22. A plus 35 is equal to 22. So A is equal to 22 minus 35, which is equal to minus 30. Okay. Okay. So now first
3 terms minus 13, then D minus 18. 8, D 5 है ना, 5 ऐड करके जा रहे हैं ना, Yes, sir. minus 3 ऐसे जाएगा 2 7 7. 12 Yes, 12. sir. etc. अंडरस्टूड? देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो। Okay, now we'll see the next question. See, Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment 200 every year. So 1995 में इन्होंने स्टार्ट किया, तब सैलरी था 5,000. 5,000. Then every year he gets 2,000 each. Like so 1996 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा? 5,200. 1997 में कितना हो जाएगा? 5,400. 400. तो वैसे जाएगा. So his salary will go like this. So his salary देखेंगे तो arithmetic progression है. 5,000, 5,200, 5,400, etc. Different 200. So what question is in which year did his income be reach? कब 7,000 हो जाएगा? That means हमको क्या निकालने हैं? N. Means जैसे this is an AP with the first term 5,000, common difference 200. 200. हमें निकालने, हमें पता नहीं जो ये n 7,000 कौन सा टर्म है करके निकालना है ना? 7,000 is which term? Understood? कब इसमें से ये ऐसे जाके जाके ये 7,000 कब हो जाएगा? That is the question. Understood? That means Yes, sir. इस AP का Yes, sir. कौन सा term है? 7,000. So we don't know, हमने लिया nth term. So A plus n minus 1 into D is equal to 7,000. A is first term 5,000 plus n minus 1 into D is 200 is equal to 7,000. So n minus 1 into 200 is equal to 7,000 minus 5,000, which is equal to 2,000.
So n minus 1 is equal to 2000 divided by 200, which is equal to 10. So that means n is equal to 10 plus 1. That means 11. Right? है ना? Yes, sir. So 11th term is 7000. So कौन सा साल में होगा? So 90, Two- 95 2006. कितना? 2004. 2006. देखो 1995 इनिशियल ईयर हो गया, इनिशियल ईयर है ना, दैट इज फर्स्ट टाइम. तो सेकेंड टाइम, सो कितना कितना ऐड करना पड़ेगा? देखो 11th टाइम, 11th टाइम है 10 times. 10 ऐड करना पड़ेगा ना. अंडरस्टूड? Yes. क्योंकि आप देखेंगे 2005. 1995 से एक ऐड करेंगे तो सेकंड टाइम मिलेगा, 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टाइम मिलेगा. अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. 1995 से एक ऐड करेंगे तो सेकंड टाइम मिलेगा, 1995 से 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टाइम मिलेगा. तो हमें चाहिए 11th टाइम. सो 1995 में 10 ऐड कर देना. सो इन 2005 his salary will become 7,000. कंफ्यूज नहीं होना. 11th टाइम है, उसमें से कोई डाउट नहीं है. सीक्वेंस का 11th टाइम है 7,000. इट इज पक्का, कोई डाउट नहीं. बट हमें यही क्वेश्चन यही था कि कौन सा साल में उनका, इन विच ईयर इनका सैलरी 7,000 हो जाएगा. तो 1995 फर्स्ट टाइम है. सो सेकेंड टाइम मतलब 1995 से ये ऐड कर देना, थर्ड टाइम मतलब 1995 से 2 ऐड कर देना. सो देखो 1995 प्लस 1, सो आपको सेकेंड टाइम मिला. 1995 प्लस 2 आपको थर्ड टाइम मिला. सो आपको 11th टाइम मिलना है तो 1995 के साथ 10 ऐड करना था. दैट इज वाई इन 2005 हिज सैलरी विल बिकम 7,000. क्लियर? Sir. Yes, sir. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. First week of a year. So first week में कितना सेव किया? सेव्ड ₹5. फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किया. Then increase her weekly savings by 1.75. So सेकेंड वीक में उनका सेविंग 1.75 रुपीज ज़्यादा हो गया. दैट मीन्स उनका सेविंग्स अभी सेकेंड वीक में उन्होंने सेव किया 6.75. 7. ठीक है. देन थर्ड वीक में, दोनों वीक पूरा मिलके नहीं,
हर एक वीक में उनका सेविंग्स वन, ऐसे नहीं बोल रहे कि सभी सेविंग्स ऐड करेंगे तो उतना मिल रहा करके नहीं. फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किया, देन आने वाला वीक में हर वीक में वो क्या कर रहे हैं, उनका सेविंग्स 1.75 बढ़ा रहे. सो सेकेंड वीक में उनको प्रॉफिट मिला, नहीं तो सेविंग्स मिला. इट इज 5 plus 7 1.6, 6.75. Now 6.7, 8.5. 6.75 plus 1.75, 8.5. तो वैसे इनका सेविंग्स जाएगा. जैसे फोर्थ वीक में वो सेव करेगा 8.5 plus 1.75, it is rupees 10.25. तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एंड वीक में वीकली सेविंग्स 20.75 हो गया. दैट मीन्स एंड टर्म इज 20.75. 20.75. फर्स्ट वीक का A1, सेकेंड वीक का A2, थर्ड वीक का A3, फोर्थ वीक का A4, ऐसे तो एंड वीक का AN इट इज 20.75. हमें चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N. So this 5, 6.75, 8.5, 10.25, etc. This is an AP, है ना. First term is 5, common difference is 1.75, क्योंकि हर हफ्ते में 1.575 रुपये इंक्रीज करके जा रहे. दैट मीन्स 1.75 इज ऐड करके जा रहे. So nth term is A plus n minus 1 into D, which is equal to 20.75. A is हमें पता है 5 plus n minus 1 into common difference 1.75 is equal to 20.75. That means n minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5, है ना. उसका मतलब 15.75, correct. So n minus 1 equals 15.75 divided by 1.75. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं 1575 डिवाइडेड बाय 175. आप कैंसिल करना यू कैन डू लाइक चाहिए तो 25 से कर सकते हैं, नहीं तो उतना लंबा नहीं कर सकते, 5 से करो. 3 5s are 15, then 1 5 is 5, remainder to 25, 5 5s are 25. 9 answer. 3 5s are 15, remainder to 25, 5 5s are 25. अगेन आप कर सकते हैं 5 से. 6 5s are 30, remainder 115, 3 5s are 15, 7 5s are 35. Again 7 से 9 7 is 63. 9 sir. That means n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 9 plus 1, which is equal to 10. that is what the question. So in the 10th week उनका सेविंग्स हो जाएगा. 10th वीक में उनको 20.75 सेविंग्स मिलेगा. Yes.
Okay. Now, so that area is finished. Now we will go to the next topic. So अभी हमने जो डिस्कस किया था एंड टाइम के बारे में डिस्कस किया था, एंड टाइम के बारे में। Yes, sir. अभी हम जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज so now what we are going to discuss is sum of first n terms. Sum of first n terms of an AP. अभी क्या करेंगे, फर्स्ट n टाइम्स का सम कितना है वो हम निकालने के लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताएंगे तो जैसे देखो सीक्वेंस, जैसे 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, करेक्ट। तो इट्स एन एपी। फर्स्ट टाइम इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। sum of first 3 terms, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं पता है क्या? यस देन नीचे 3 लिखते हैं, यस 3, दैट मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट 3 terms। सो सम ऑफ द फर्स्ट n terms मतलब जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, यस मतलब सम, नीचे n लिखते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट n terms का सम। तो इधर है तो देखो यस 3, फर्स्ट 3 terms क्या है? 2 + 4 + 6 कितना आएगा? 12। अंडरस्टूड? अभी Yes, sir. सम ऑफ फर्स्ट 5 terms पूछा, 5 terms पूछे तो फर्स्ट 5 terms 2 + 4 + 6 + 8 + 30. 10 30 30. अभी मैं आपको पूछ रहे इसका सम ऑफ द फर्स्ट 900 terms क्या है? ऐसे पूछेंगे तो ऐसे लिख के काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। So it's very big thing, क्योंकि this sequence arithmetic progression is infinite, it is not ending, it is going on लाखों करोड़ों टाइम्स है उसके अंदर। सो मैं आपको पूछ रहे फर्स्ट 900 टाइम्स का सम कितना है, तो ऐसे 2 + 4 + 6 + ऐसे पूरा लिख के आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें जनरल फॉर्मूला का जरूरत है। ओके, तो उसका फॉर्मूला है, आई विल टेल यू द फॉर्मूला। बाद में एक दिन मैं आपको कैसे वो फॉर्मूला आया बताता हूँ। देयर आर 2 formulas, one is sum of first n terms is equal to n/2 into 2a plus n-1 into t. That is one formula to find the sum of the first n terms. दूसरा फॉर्मूला है Sn is equal to n/2 into first term plus last term। कभी हम फर्स्ट ऐसे, कभी ऐसे भी लिखते हैं n/2 into in bracket first term plus last term, जैसे last term को L, अंडरस्टूड? लास्ट टाइम को Yes, कभी sir. कभी L डिनोट करते हैं। सो two formulas, one formula is n/2 into
n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Another formula, n by 2 into first term plus nth term. So just for this one, I will explain you more in tomorrow's class. There is not enough time. So just for this question देखो S5 फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे करें वो दिखाता है आपको. n by 2, so इधर n क्या था 5, so 5 by 2 into 2a, a कितना था इधर, a is equal to 2, b, d is equal to 2, correct? Yes, sir. So 2a, so 2 into 2, इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे आते हैं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. D. So n is 5, so 5 by 2 into 2 into a was 2, either a is 2, it is given there, d is 2. Yes. So 2a yes. plus n minus 1, so 5 minus 1 1 second, minus d अंदर है, 5 minus 1 into d, d is also 2, so which is 5 by 2 into 2 into 2 4 plus 5 minus 1 is 4, 4 into 2 8, so 5 by 2 into 12, so 2 12 कट हो जाएगा 6, 6 into 5 which is equal to 30, so हमें 30 मिला था देखो. अंडरस्टूड. तो वैसे फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला कैसे आगे मैं आपको सिखाता हूँ एक दिन. सो फॉर्मूला यूज करके भी हम निकाल सकते हैं. सो दूसरा फॉर्मूला का स्पेशलिटी देखो, इधर है तो फॉर्मूला में आपको सेकंड फॉर्मूला में आपको फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम चाहिए, तभी आप सब निकाल सकते हैं. बट फर्स्ट फॉर्मूला में लास्ट टाइम का कोई जरूरत नहीं, आपको 900 टाइम का सम चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए फर्स्ट टाइम एंड कॉमन डिफरेंस. Is it clear? So that is the difference between that Yes, formula. sir. So इधर okay, दोनों फॉर्मूला में Yes, दिखाता sir. है आपको. इधर तो फॉर्मूला में देखो S5 is n by 2 into first term plus last term, उसी फॉर्मूला में भी दिखाता है. n is 5 by 2 into first term is 2, fifth term is 10, पता है इसलिए लिखा है. So that is 5 by 2 into 12, that is again 30. तो फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, एंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम पता है तो सेकंड फॉर्म